Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 16th of September 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about these two important topics. The number one is about the GM crops. The number two is about the name change from India to Bharat controversy. So before we begin our main discussion, this is our YouTube channel IAS Cafe. If you're really liking our videos, our initiatives, please do subscribe our channel, like and share our videos. Now, coming to our main topic, that is the GM crops or a transgenic crop. In today's newspaper, there is one detailed editorial is given about the permission given to GM mustard variant. But before we understand that, what are the benefits of allowing the GM mustard in our country? We must know the concept about the genetically modified crops, that are the GM crops or the transgenic crops. All right. So here comes the basic concept that what is the GM crop or a transgenic crop. Now, most of you will say that GM crops and transgenic crops are one and the same thing. See, होता क्या है, ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. जीएम क्रॉप को कभी कभी ट्रांसजेनिक क्रॉप बोल दिया जाता है और जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है उसको जीएम क्रॉप बोल दिया जाता है. लेकिन इनमें एक स्लाइट डिफरेंस जो है वो देखा जाता है. लेकिन पहले ये है क्या उसको हम समझते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि जो उनके बीच में बहुत छोटा सा जो डिफरेंस है वो क्या है. ठीक है. So suppose this is a crop. देखो, we will not go in total technicality. We'll just understand in the basic layman language. ये आपके पास कोई crop है, ठीक है. So we have taken the genetic material of the crop, that is the DNA. ठीक है. हमने क्या किया, एक particular crop लिया, ठीक है. So this is like a crop and हमने इस crop का DNA जो है उसको isolate कर लिया. So we basically isolated the DNA of this crop. Now, in that DNA, using the genetic engineering technique, मैंने एक छोटा सा जीन इसमें इंसर्ट कर दिया, which is known as the desirable gene. इसको मैंने क्या नाम दिया, desirable gene. For example, ये आपके पास एक कॉटन की क्रॉप है. इस कॉटन की क्रॉप के अंदर आपको ऐसा जीन इंसर्ट करना है कि उस जीन को इंसर्ट करने के बाद इस क्रॉप पे कोई इंफेक्शन ना हो पाए. तो हमने आर्टिफिशियली क्या किया, इसके अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो जीन लेके इसमें इंसर्ट करवा दिया, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग. अगर आप इस वर्ड को समझेंगे, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग. मतलब यहाँ पे हमने जीन की इंजीनियरिंग करी है, जीन को तोड़ा मरोड़ा है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से हमने जीन लिया है और उस जीन को हमको जहां इंसर्ट करवाना था, जो रिक्वायर्ड जगह थी, वहां पे हमने उसको इंसर्ट किया है. तो ये जो टेक्निक है वो है आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक. इसको आप इससे जो प्रोडक्ट आता है दैट इज नोन एज योर जीएम क्रॉप और द transgenic crop, right? So you will be saying it as a GM crop or a transgenic crop. Now, definition. The transgenic crops are the plants that have been modified through the genetic engineering technique. समझ आया? ये मेरे पास एक प्लांट था जहां पे मैंने इसका एक डीएनए लिया. इस डीएनए को मुझे मॉडिफाई करना था या फिर बदलना था. और दूसरी तरफ मेरे पास एक दूसरा प्लांट था या ऑर्गेनिज्म था, इसका डीएनए जो है उसके उस डीएनए में वो जीन है जो मुझे चाहिए. तो ये जीन को मैंने यहां से निकाल के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया. तो यहाँ पे ये क्या बन गया, मॉडिफाइड जीएनए बन गया. करेक्ट. तो डेफिनेशन समझ आ रही है, दैट the transgenic crops are the plants that have been modified through the genetic engineering technique.
So these crops have had the specific genes inserted into their DNA to give them new characteristics or the traits that are not naturally found in the species through the traditional breeding methods. Here है definition. Now, GMO versus the transgenic organism. अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से जो नया ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम जीएमओ बोलते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और दूसरी तरफ है आपके पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों टर्म्स ही इंटरचेंजेबली यूज होती है, लेकिन इनमें आपको एक स्लाइट डिफरेंस मिलेगा। कैसे? Although both have the altered genome, देखो चाहे आप जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हो या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, ठीक है। तो आपके पास एक तरफ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। दोनों ही सिनेरियो में हमने क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है। इनका जो जीनोम है यानी जो सेट ऑफ जीन्स पाए जाते हैं वहां पे हमने मॉडिफिकेशन किया है। तो दोनों में अभी तक सिमिलैरिटी है। तो डिफरेंस क्या आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट, और ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म, उसमें डिफरेंस देखिए। तो ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग अ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे वर्ड क्या है, ट्रांस। ट्रांस यानी कि यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो डीएनए हम यहाँ पे एल्टर कर रहे हैं, या फिर इसका जो जीन हम हटा रहे हैं, या फिर ये जो डीएनए मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रही हूँ, तो ये जो एल्टर्ड जीन है जो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये मैं किसी बी ऑर्गेनिज्म से ला रही हूँ, यानी कोई और स्पीशीज से लेके आ रही हूं। आई रिपीट दैट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एल्टर्ड जीनोम होता है उसमें जो मेरे पास रिक्वायर्ड जीन है वो मैं दूसरी स्पीशीज से लेके आती हूँ। लेकिन जब मैं जीएमओ के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे GMO is an animal, plant or microbe whose DNA has been altered using the genetically engineered technique। यानी उसका स्पीशीज अलग नहीं होता, उसके डीएनए को नॉर्मली आप एल्टर कर देते हो, चेंज कर देते हो वाया द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? Now, what is the status in India about it? इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में जो कॉटन है वो कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है फॉर द जेनेटिक क्रॉप। अब आप पूछो ऐसा क्यों? जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो हाउ इट विल रिस्पॉन्ड इन फ्यूचर, इज इट सेफ और नॉट, देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया के अंदर ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से जो आपके पास कॉटन है विच इज अ जीएम क्रॉप, इसको अलाउ किया, क्योंकि आप उसको खाना नहीं है, ये कमर्शियल क्रॉप है, तो कोई खास इसके नुकसान नहीं होने वाले हैं। तो यही देखते हुए सिर्फ कॉटन जो है उसको अलाउ किया गया। दैट इंडिया, in India, only the cotton is currently commercially cultivated as a GM crop. Trials are underway for the other crops जैसे कि ब्रिंजल है, टोमेटो, मेज, चिकपी। तो ये जो चार क्रॉप्स है जैसे कि ब्रिंजल, टोमेटो, मेज और चिकपी, इन पे ट्रायल्स चलते हो रहे हैं कि हम क्या इनको भी अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब भी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अप्रूव करने की बात आती है, तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिकली engineered approval committee, that is genetic engineering approval committee. This committee is responsible for basically approving the environmental release of the GM mustard hybrid। और यहीं से आप क्या यूज करोगे, न्यूज का कंटेक्ट देखोगे कि ये जो आपके पास अप्रूवल करने वाली कमिटी है, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, बिकॉज इन्होंने रिसेंटली जो सरसों होता है यानी कि
GM मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है, दैट इज DMH11, इसको यूज करने के लिए परमिशन जो है अप्रूव कर दिया गया है। यानी इसका भी कॉटन की तरफ GM मस्टर्ड एक कमर्शियल कल्टीवेशन पॉसिबल होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। अब इसको कृपया आप ग्रांटेड ना लें। Like DMH was recently seen in the news is related to what? ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है? Like DMH11 was recently seen in the news is related to what? So, however, there is an ongoing legal case in the Supreme Court questioning the permission for transgenic food crops. They seek a stay on the GM mustard, citing the concerns about farmers using the banned herbicide. तो जैसे मैंने कहा कि GM क्रॉप्स की सेफ्टी को लेके देयर आर सर्टेन अनआंसर्ड क्वेश्चन, इसी वजह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी जो है, इन्होंने अप्रूव तो कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट में इसका जो केस है वो अभी पेंडिंग है कि इस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स है वो सारी हर्बिसाइड को यूज करते हैं जो कि बैन है। तो इट शुड नॉट, इट्स नॉट लाइक अ स्टेट अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ पीपल। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि ये रेगुलेट कैसे होता है। ओके, how are the genetically modified crops regulated in India? In India, the regulation of all the activities related to GMO and the products are regulated by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. देखो, अब यहीं पे सारे बच्चे करते आते हैं आंसर गलत। आपको लगता है कि भाई क्रॉप की बात हो रही है तो आप वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उससे रिलेटेड कुछ भी आप टिक करके आ जाते, बट नहीं, मिनिस्ट्री यहाँ पे लगेगी एनवायरमेंट से रिलेटेड, दैट इट इज रेगुलेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके जो प्रोविजंस है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। Plus, the Genetic Engineering Appraisal Committee under this ministry is authorized to review, monitor, and approve all the activities, including the import, export, transport, manufacture, use, or sale of GM. So this committee recently approved the genetically modified mustard, ये हमने देख लिया है। और ये जो रेगुलेशन है उसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ और छोटे मोटे एक्ट थे जिसके थ्रू आप इनका रेगुलेशन देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द एक्ट एंड रूल दैट रेगुलेट द GM क्रॉप्स इन इंडिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दैट इज EPA, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर 2003, GM पॉलिसी under the foreign trade policy, food safety and standard act 2006, drugs and cosmetic rules 1998। अब न्यूज कंटेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभी जो GM मस्टर्ड का DMH11 है, ये एक नया ईरा, अब इसमें पूरा एक एडिटोरियल ओपिनियन दिया गया है कि अगर GM मस्टर्ड DMH11 एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है, जिसको अप्रूवल मिल चुका है, तो ये एक सेल्फ रिलायंस स्टार्ट करेगा इंडिया में एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अगर हम 2019 की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन रिपोर्ट को देखें, राइट, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019, इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द जीरो हंगर टारगेट बाय 2030। हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, राइट, तो उसपे से हमारा एक टारगेट है दैट इज जीरो हंगर। 2030 तक हमको जीरो हंगर का टारगेट पूरा करना है। लेकिन 2019 की ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की, वो बोलता है, ये रिपोर्ट कहती है कि ये बहुत मुश्किल है कि आप 2030 तक इस टारगेट को अचीव कर पाओ। So the emphasis needs to be accelerating the pace of improving the crops genetically। यानी अगर आपको इस रेट को बढ़ाना है, इस टारगेट को अगर आपको बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की तरफ जाना चाहिए, ये राइटर का कहना। क्यों? क्योंकि आपको अगर जीरो हंगर की तरफ जाना है तो आपको फूड प्रोडक्शन
जाना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा कि आप कम से कम इंपोर्ट करो। तो हमें कुछ ऐसी सुपीरियर क्रॉप वैरायटीज की जरूरत है, ऐसी हाइब्रिड वैरायटी की जरूरत है that provide enhanced yield and wide adaptability across the environment and require the fewer import of the natural resources. So the advent of green revolution, तो यहाँ पे जब इंडिया में शुरुआती दौर पे पॉवर्टी जैसी सिचुएशन थी, भुखमरी जैसी सिचुएशन थी, तब 1960s के अंदर या 70s का जो टाइम था, एट दैट टाइम द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड. ओके, so the advent of the green revolution in the 1960s or 70s resulted in the enhanced food production from a mere 50 million ton in 1950 to 51 to 300 million ton. तो इस रिवोल्यूशन ने इतने अमाउंट का जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया. हाउएवर ये जो नया बायोटेक या फिर जीएम क्रॉप है, ये पूरी तरह से जो ट्रेड्स है यानी जो कैरेक्टर्स होंगी क्रॉप के, उनको भी इंप्रूव करेगा, which are must in order to mitigate the climate change and produce a nutrient dense food. So as per the writer कि हमको न्यूट्रिएंट रिच अगर फूड बनाना है तो जीएम क्रॉप इज द बेस्ट ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज the GM crop ultimately leads to the improvement in the characteristics of the crop. For example, there is a food. For example, there is a rice. If you are talking about the rice, there are certain amount of nutrient, but by GM crop, right, we can add the essential nutrient in that rice and we can provide the rice in the lowest price to the poor. So ultimately जो nutrient requirement है वो भी पूरी हो सकती है. ठीक है. So the genetic modification of the crops using the available and vast genetic diversity in conjunction with traditional farming has been well documented for increased productivity, contributing to the global food, feed and fiber security. According to a report by International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, a total of 72 countries have adopted GM crops. आइदर अब ये थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे राइटर कंपेयर कर रहा है कि अगर हम इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक और एप्लीकेशन की जो रिपोर्ट है दैट इज दी आईसा 2020, इस रिपोर्ट की माने तो 72 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड जीएम क्रॉप्स, चाहे वो ह्यूमन फूड के लिए यूज कर रहे हो या एनिमल फीड के लिए यूज कर रहे हो या कमर्शियल कल्टीवेशन. उसमें से 56% ऑफ द ग्लोबल जीएम क्रॉप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में यूज हो रहा है और 44% जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में हो रहा है. तो जीएम क्रॉप से जब इतना 1.95 बिलियन पीपल को बेनिफिट मिल रहा है 5 कंट्रीज में जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया और यूएसए, यानी 26% आज की जो डेट है उसको इतना फायदा मिल रहा है. तो व्हाई इंडिया इज टेकिंग सो मच टाइम टू थिंक? दिस इज द राइटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. BT cotton was commercialized as the first GM crop in India. कम से कम 20 साल पहले ऐसा हुआ and has been viewed globally as a great success story in terms of economic advantage to the farmers and to the nation. So globally, genetic modification has expanded its reach beyond the 4 crops. यानी कि अगर हम 4 crops की बात करें जिसमें maize है, सोयाबीन है, कॉटन है या किनोला है, इन 4 क्रॉप से आगे भी जीएम क्रॉप्स ने अपनी तरक्की दिखाई है पूरे वर्ल्ड में. तो other economically important food crops for various traits such as insect and herbicide resistance, the climate resilience and nutritional quality improvement. So the global economic gains contributed by GM crops have amounted to 224.9 billion in economic benefits to more than 16 million farmers. 95% of women are from developing countries. तो ये सब एक पॉजिटिव फैक्ट थी जो डेटा है. राइटर इज टॉकिंग अबाउट दिस डेटा. नाउ इन द एडिबल ऑयल डेफिसिट अ फोकस ऑन द मस्टर्ड. अब राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक डॉट को कनेक्ट किया है दैट जहां पे तेल की कमी है वहां पे फोकस मस्टर्ड पे होना ही होना चाहिए.
इंडिया फेसेस अ मेजर डेफिसिट इन द एडिबल ऑयल। हमारे यहाँ पे जो खाद्य तेल है, यानी कि जो एडिबल ऑयल की कैटेगरी है, उसमें बहुत ही डेफिसिट है, कमी है। 60% ऑफ इन डिमांड जो है हम इंपोर्ट से कर पाते हैं, जिससे मस्टर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द इंडिया। हाउएवर इट्स पर हेक्टेयर यील्ड जो है बहुत ही ज्यादा कम है अगर हम ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें। तो अगर हमने इस मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, तो एक कंट्री के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि हम इंपोर्ट पे कम डिपेंडेंट होंगे। हमारी फार्मर्स के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा। इट विल बी लाइक अ सेल्फ सफिशिएंट की तरफ हम जाएं। So using the genetic engineering, extensive research has been carried out at the Center for Genetic Manipulation of the Crop Plant, the University of Delhi South Campus, to create a GM mustard hybrid. It will higher vigor and yield. This will facilitate an increase in domestic production of edible oil as well as enhance farm income. The GM mustard hybrid is based on the Bastel system or the Baroness, ये बहुत important term है, which works on the principle of removing the male fertility. तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा इन्होंने टेक्निकल बता दिया, हम इतने टेक्निकल में नहीं जाएंगे। आपको पॉजिटिव पॉइंट याद रखना है कि इट विल हेल्प टू बूस्ट द सेल्फ रिलायंस थिंग, जिस तरह से अभी हमने देखा, राइट। नाउ द सेकंड टॉपिक इज अबाउट द नेम चेंज डिमांड कंसेंसस, कि अगर आपको इंडिया से भारत नाम करना है तो उसमें आपको सहमति की जरूरत है या नहीं है, उस पर ये ओपिनियन बेस्ड डिबेट और डिस्कस ट्यूटोरियल है। ओके, अभी जब G20 की समिट हुई थी, उस पर देखा गया कि एक ऑफिशियल इनविटेशन भेजा गया जिसमें सामने लिखा था दैट प्रेसिडेंट ऑफ भारत, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह वहां लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और इससे बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो उठ के आ चुकी है। The controversy is symptomatic of the present day political atmosphere, characterized by an intense distrust of each other, extreme and inexplicable revengefulness, and heightened revanchism a part of power users. तो यहाँ पे हम सीधा उस पर चलते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या नहीं। So let us examine the whole issue of the change of the name of country from a purely constitutional point of view. First, the invite that went out from the Rashtrapati. This invite used the nomenclature the President of Bharat. अब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 पे आ जाओ, जो कि द यूनियन के बारे में बात करता है। लक्ष्मीकांत जो बुक है आपकी पॉलिटी की, उसको याद करिए। आर्टिकल 52, it talks about that there shall be a president of India. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में जो टर्म यूज हुआ है दैट there shall be a president of India, तो यहाँ पे भारत नहीं लिखा है। This is official nomenclature of the head of the state which cannot be changed into anything else unless आप आर्टिकल 52 को अमेंड करते। तो अगर आपको इंडिया से भारत नाम ले जाना है तो ये कुछ आर्टिकल्स है, जैसे कि आपको पहले उनको बदलना, अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। So thus it is quite obvious that the term President of Bharat is not a conformity with the Article 52 of the Constitution. फिर आता है आपके पास पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया और द भारत, both terms are written. Article 1 says India, that is Bharat, shall be a union of states. These words by no means signify that the word India and Bharat are interchangeably and that Bharat can be used in place of India. अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है that India, that is Bharat, shall be the union of states.
तो यहाँ राइटर कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. As a matter of fact, the Bharat term is not used in any of the articles constitution except in the Hindi version, जो कि published हुआ था under the authority of President under Article 394 Clause 8. तो अगर आपका इंटेंशन है कि the constitution makers was to use the word भारत interchangeably, तो उनको बाकी के जो पार्ट्स है वहां पे भी इनको यूज करना चाहिए था, राइट? So in this context, let us try to understand the true import of the word India, that is Bharat, used in Article 1. So this word that is, यहाँ पे Article 1 क्या कहता है? That is India, that is भारत. तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो that is लिखा हुआ है, it is clarify, इसका फंक्शन है to explain और further clarify the preceding word India. मतलब India word को ये explain कर रहा है. It is not something जिसको आप interchangeably use कर सकते हैं. Thus, interpreted that Article 1 would mean India, that is known as Bharat, shall be union of states. Article 1 in the Hindi translation of the Constitution says Bharat means India, which shows that Bharat is treated as a translation of India. In other words, the Bharat does not stand as an independent word in the original Constitution. फिर अब आगे आओ, आर्टिकल 394 क्लॉज 2 की बात करो, ए सब क्लॉज 2 says that the translation of this constitution shall be construed to have the same meaning as the original thereof. This clause reinforces the point that the word Bharat is translation of the word India as used in the original constitution. तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा कंफ्यूजन लाके रख देगा. द यूज ऑफ भारत जो इंटरचेंजेबली यूज कर रहे इंडिया के साथ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. जो हमारा ऑफिशियल नेम है कंट्री का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दिस इज द नेम यूज्ड इन ऑल द कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि हम फॉरेन कंट्रीज या कि जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनको हम भेजते हैं. जितने भी अग्रीमेंट्स या ट्रीटीज होते हैं वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं, ना कि रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम पे होते हैं. तो अगर आप बोल रहे हो कि इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं तो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन. बाकी जो तो यहाँ पे नहीं हुआ है. So this is how the writer is pointing out towards the consensus कि आपको इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए आपको अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, एक कंसेंसस की तरफ जाना पड़ेगा. You cannot create a confusion like this. Okay, so this is it for today. I hope you liked the video. If you're really liking our video, please do subscribe our channel. Thank you so much.